ہلو ہیلو ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی مولانا محبوب صاحب بول رہے ہیں. جی فرمائیے. خیریت سے؟ ہاں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہوں. الحمدللہ. مولانا کچھ بات اس لیے کرنی تھی کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیک چلتی ہیں جس کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں. ہاں واٹس ایپ ہو فیس بک ہو، لیکن جب تک علماء سے اس کی تصدیق نہ کر لی جائے تب تک اس پر عمل نہ کیا جائے. اس لیے کہ یہ پتہ نہیں بغیر ثبوت کی بہت ساری چیزیں چلائی رکھتی ہیں. ہاں اور اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے تعلق رکھا جائے، کنٹیکٹ رکھا جائے تاکہ اس کو تحقیق کر لیا جائے، اس کے بعد کوئی بات کی جائے. اب ایک بات یہاں چل رہی ہے، اپنے بھائی کرتے ہیں مسجد میں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں تبلیغ میں سنی سنائی چلتی ہیں جو بھی حقیقت سے کچھ دوری رہتی ہے، بغیر تحقیق کی وہ بھی چلتی ہے. ہاں آپ جیسے دعوت تعلیم استقبال کے سلسلے میں مسلسل یہاں چل رہا ہے کہ صحابہ پہ روزانہ گشت کر کے مسجد میں لا کے دین کی بات کرتے ہیں. نام عبداللہ ابن رواحہ، معاذ بن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا جاتا ہے. تو ایک عالم صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار ایسا نہیں ہے، کیوں چلاتے ہو؟ تو وہ دعوت تعلیم استقبال کے چلاتے ہیں، اس کی دلیل یہاں سے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کا روزانہ کا معمول تھا اس لیے ہم کرتے ہیں، اور جو اس کا حوالہ بخاری شریف سے دیتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہو تو چلے، اگر نہیں ہے تو بھائی وہ کہنا مناسب نہیں ہے بخاری اور صحابہ کے عمل کا. اس میں دو گروپ ہے. ایک گروپ کہتا ہے ہاں جی، ایک گروپ کہتا ہے جو عالم ہے وہ کہتے ہیں بھائی تو کہیں ملی نہیں. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ بھائی ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے اس لیے ہم چلائیں گے. کیا صحیح ہے؟ ہم یہ لفڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم صحیح بات جاننا چاہتے. جی بھائی اللہ کے پوچھ ہوگی قرآن حدیث پر عمل کر کے آئے کہ نہیں آئے. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یہاں امبیدکر نگر سے بول رہا ہوں. امبیدکر نگر؟ جی تو صحیح کیا ہے ذرا سا یہ فرما دے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی مسجد کو آباد کرنے کی تو کا حکم آیا ہے. قرآن میں بھی اس کا ہے کہ مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. تو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو آبادی کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ قرآن حدیث سے سب ثابت ہے، اس پر تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. جی لیکن یہ جو بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں تو آبادی سے مراد جو ہے نماز پڑھنا ہو سکتا ہے، ذکر کرنا ہو سکتا ہے، تلاوت کرنا ہو سکتا ہے. مسجد کے جو اعمال ہے کہیں بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ روزانہ گشت کر کے مسجد میں لا کے بات کرتے تھے اس لیے دعوت تعلیم استقبال کرتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے. یہ چیز بتائیے آپ بخاری میں ہے کہ نہیں؟ اس کا یہ ثبوت ملتا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ روز کرتے تھے یا کبھی کرتے تھے. اگر صحابہ نے ایک بار بھی دو بار بھی کیا ہے تو بھی ہمیں کرنا چاہیے. جی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بخاری کی روایت پیش کرنا ثابت ہے. یہ ثابت ہے، ہاں ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نکل کر انہوں نے. اچھا ٹھیک. مولانا کہاں سے نکلے؟ گھر سے نکلے کہ مسجد سے گئے؟ گھر سے. تو گھر سے نکلے، جو صحابہ کا جو عمل جیسے ویسے کرنا ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ تو مسجد سے نہیں گئے نا، تو گھر سے گئے نا. ہاں تو اس کو یہاں سے کہاں دلیل جوڑ دیں گے؟ مسجد سے. بھائی چاہے آپ مسجد سے نکلے چاہے گھر سے نکلے. اور دوسری بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کے نہیں آئے نا، اطلاع کر کے چلے گئے مسجد میں. تو سنگل آدمی تھے، اکیلے آدمی تھے، جماعت کی شکل میں تو تھے نہیں. جی تو انفرادی دعوت تو کر سکتے ہو اس چیز کو انفرادی طور سے، چونکہ اس زمانے میں مسجد نبی ہر دم اعمال سے مزین رہتی تھی. جی تو اب انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں کہاں غفلت میں پڑے ہو، جاؤ حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. جی تو نہ مسجد سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گئے، نہ ان کو گشت کر کے مسجد ملائی گئی، اطلاع دے دیا. جی
ये तो ठीक है, गलत दे दो कोई मसला नहीं, लेकिन जो ये हदीस पेश की जाती है सहाबा पे गश्त करके मस्जिद में मिला के और 3 सहाबी का नाम लिया जाता है। हाँ, ये तीनों से साबित है इस तरह से कि वो लोगों को मस्जिद में लाने के लिए कहते थे, आने के लिए कहते थे। ये जो नहीं अब तो जाहिर है, नहीं तो रोजाना कहते थे। वही मसला ये है कि सबूत के लिए उनका नाम पेश किया जाता है। ठीक है, सबूत के लिए, लेकिन ये हाँ, कहा जाता है ये अमल बुखारी में दर्ज है, तो बुखारी में जैसे अमल दर्ज होगा वैसे ही कहना है ना। अब जाहिर है कि वो तरीका तो बदलता रहेगा ना, तो तरीके में तो बदलता तो रहेगा, लेकिन उसमें हदीस का हवाला नहीं पेश करना है ना भाई। आप वो दावत का काम करना, जहाँ जैसा मौजू हो वैसा करो। अब जाहिर है कि आवाम जो है वो कहाँ जानेंगे सब बातें, पूरी बात ये है। लेकिन जब हदीस आप पेश करोगे ये चीज बुखारी में है, तो बुखारी में जैसे ही दर्ज किया होगा वैसे ही पेश करना है ना, नहीं तहरीफ हो जाएगी, नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मसला ये है तहरीफ नहीं होगी, सहाबा का अमल। सानी एक मिनट, मौलाना एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, फिर जवाब दीजिए। सहाबा का अमल जैसे है उस अमल को दूसरे तरीके से पेश कर देना तो तहरीफ नहीं हुई। अमल तो बदलता रहेगा, तरीका जो उसका होगा नहीं, तरीका तो बदलता रहेगा। रहेगा, लेकिन जब आपने कहा इस तरीके पर सहाबा ने किया है, हाँ, ये गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। तो तहरीफ हुई कि नहीं हुई? ये नहीं कहना चाहिए कि इस तरीके ही पर किया, बल्कि ये कहना चाहिए कि इसका सबूत मिलता है। अच्छा, ये सबूत कहाँ पे है कि लोग गश्त करके लाए और मस्जिद में दीन की बात किया? सबूत है कहीं पर? हमको बता दें ताकि हम दूसरे को जवाब दे दें। इसका सबूत जाहिर है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी वहाँ इसकी कहाँ जरूरत पड़ती थी कि इस तरीके से बेनमाजियों को लाए जाए। तो जब जरूर नहीं तो आप तो सबूत नहीं है तो फिर कैसे कह रहे हैं सहाबा के अमल है? नहीं भाई, सहाबा का अमल तो ये है कि सहाबा के जमाने में क्या कोई नमाज छोड़ता था? नमाज नहीं छोड़ता था। तो इस पर हम जब कहते हैं सहाबा रोजाना गश्त करके मस्जिद में लाके दीन की बात करते थे, ये सबूत कहाँ से है? ये तरीका है, इस दौर का तरीका जो है वो, इस दौर के एतबार से दावत के तरीके बदलते रहे, कोई तरीका मुतय्यन नहीं है, जहाँ जैसा बेहतर समझो वैसा करो। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ये कह देना कि सहाबा के अमल है तो सहाबा के तरीके में तहरीफ नहीं हुई। तरीका जो है वो अलग है, लेकिन अमल का सबूत है। नहीं, अमल का सबूत तो है भाई। आप दावत देते हैं जहाँ जैसी मुनासिब मामला हो वैसा करो। घर में करना घर में करो, नई बात करने का मौका है बाद में कर लेना ही तो है, लेकिन कहना है सहाबा के तरीका है और बुखारी शरीफ में है। कहने का तरीका, वो कहने की बात है, उनको इस तरह से ना कहना चाहिए। नहीं, इस तरीके से कोई अगर कह रहा है तो तहरीफ है कि नहीं है? अब जाहिर है कि तहरीफ की किस्में हैं बहुत सारी। जैसा इसमें तहरीफ की किस्म बताओ, सहाबा का तरीका दूसरे तरीके का है, हम दूसरे तरीके बतावें तो सहाबा पर इल्जाम हुआ कि नहीं हुआ? उनके अमल में तहरीफ हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, इसका ऐसा ना कहिए आप, तहरीफ को बहुत बड़े माने लिया। तहरीफ के मतलब हो गया कि आदमी गुमराह हो जाएगा। नहीं, तहरीफ का मतलब जब सहाबा ने इस तरीके से नहीं किया है और हम सहाबा का नाम लेते हैं तो तहरीफ है कि नहीं? तरीका जो है वो तो जाहिर है कि हर जमाने का अलग है। ये तो मौलाना ये तो अलग बात है, हर जमाने का अलग है, अपनी मर्जी से जहाँ बेहतर हो करो। लेकिन अगर हम हदीस में बयान किया चीज हदीस में है तो हदीस जैसे ही है वैसे बयान करना ना कि उसमें तहरीफ करके करना है। हाँ नहीं, उसको तो वैसे बयान करना चाहिए भाई। ठीक है, आप काम करने का तरीका है कि बाहर माहौल अच्छा नहीं है, अंदर जाके बात करो, ये तो अलग मैटर है, ये अपना मैटर है। लेकिन ये चीज सहाबा से साबित कर देना कि सहाबा के अमल था तो तहरीफ हो गई नहीं होगी। अब जाहिर है कि आवाम जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो जी हेलो हाँ पढ़े लिखे नहीं क्या कहेंगे? वो तो मान के चलेंगे ना, ये तो मान के चलेंगे ना। नहीं, ये हदीस है, जब हम बुखारी का हवाला दे देंगे कि ये बुखारी में है और बुखारी में वो चीज नहीं है जैसा हमने बयान किया, ये तरीका नहीं है। तो जब ये तरीका नहीं है तो सहाबा के अमल को हमने तहरीफ कर दिया कि नहीं? तहरीफ का मतलब ये नहीं है कि तहरीफ के उनके उसको बोल दिया भाई तरीका बदल गया है। तरीका तो सभी जानते हैं कि तरीका वो नहीं रहेगा। नहीं, तो जो हम कहेंगे ये चीज बुखारी में लिखी हुई है, इस तरीका ये लिखते हैं, कहते हैं ये तरीका लिखा हुआ है जी, ये भी कहते हैं सहाबा। पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मस्जिद की आबादी की मेहनत जी,
عبداللہ ابن رواحہ، معاذ ابن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں لا کے دین کی بات کرتے تھے. یہ الفاظ ہیں. اور دعوت تعلیم استقبال جب شروع کر رہے ہیں تو یہ پہلے یہ کہتے ہیں یہ ہمارا عمل سیرت اور صحابہ کی سنت سے بالکل ملتا ہے. تو اس پر یہ بیان کرتے ہیں تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کہیں گے تو حدیث ہے. تو وہ حدیث تو ہے ہی نہیں. حدیث مان کے عمل ہو رہا ہے تو تحریف ہو گئی نہیں ہو گئی. تحریف لفظی ہوئی، معنوی نہیں ہوئی. معنوی کیوں نہیں ہوئی جب صحابہ کا عمل لفظی تحریف اور معنوی تحریف میں کیا فرق ہے؟ ذرا بتائیں. آپ تو عالم ہیں، فرق ہے. بتائیے ذرا سا وضاحت کر دیجیے. آگے مطلب ہے کہ لفظ کے اعتبار سے آدمی جیسے بولتا ہے تو مولانا جب ہم یہ کہہ دیں گے معنوی جو ہے طور پر ثبوت مل گیا تو پھر معنوی طور پر ہم تحریف نہیں کہتے. مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب ہم کہہ دیں گے یہ ایسا طریقہ بخاری میں لکھا ہے یا ترمذی میں لکھا ہے اور ویسا طریقہ نہ لکھا، پکڑنے کی بات ہو گئی کہ آدمی بات پکڑے تو ظاہر ہے اگر ایسے رہے گا تو پوری حدیث تحریف ہو جائے گی. حدیث میں کچھ لکھا ہو ہم کچھ بیان کریں، ہم کہتے ہیں تو معنوی تحریف نہیں ہے. آپ عوام سے کیوں پوچھیں گے؟ حدیث آپ علماء سے پوچھیں گے. اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. اب یہ دو گروپ ہے تو کیا کروں میں؟ اسی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. عوام سے کیوں پوچھوں گا؟ وہ تو بیچارے جانتے نہیں. وہ تو جانتے نہیں. جب جو آدمی جانکار ہوگا تو میں اس سے پوچھوں گا نا، تاکہ صحیح معاملہ معلوم ہو. تو اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ ایک دلیل دیتے ہیں بھائی دیکھو اتنا ثبوت مل جاتا ہے. ثبوت ملنا کافی ہے عمل کے لیے. ثبوت اچھا کیا صحابہ گشت کر کے لاتے تھے؟ نہیں یا 10 مرتبہ کرتے تھے یا کبھی کرتے تھے. یہ بتائیے صحابہ گشت کر کے لاتے تھے مسجد میں؟ یہ ثبوت صحابہ میں عبداللہ ابن عمر بازاروں میں جاتے تھے جی، بازار میں، اور کلمہ پڑھتے تھے. وہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اور یہ جو تھے اس وقت بھی اختلاف ہوا جب یہ صحابہ جو 3-4 صحابی ہیں جب یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ چلو آؤ ایمان تازہ کر لیں، آؤ بیٹھو مسجد میں مذاکرہ کریں. مسجد مذاکرہ کریں؟ یہ کہاں سے؟ نہیں تو اور کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہاں تو ہر وقت مسجد ہی میں سارا. ارے بھائی آپ نے کہا کہ باہر جاتے تھے وہاں کلمہ پڑھتے تھے، اختلاف ہوا تو مسجد کہاں سے آ گئی؟ بھائی وہاں صحابہ کا تو ہر وقت مسجد ہی میں گزرتا تھا. ارے وہ باہر نہیں جاتے تھے، کھیت کھلیان یا دنیائی ضرورت سے نہیں جاتے تھے. بہت کم. جب جاتے تھے بہت کم. تو یہاں لکھا ہوا ہے صحابہ کے دور میں تو یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کاروبار مستقل کرنے لگے تو یہ سمجھتے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں سے آپ بولے آئے کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ بات کریں؟ یہ حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ یہی ہے روزانہ کا جو ہم لوگ کا کاروبار ہے، دھندا ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے جو پڑتی تھی تو وہ اپنی ضرورت کے لیے چلے جاتے تھے، اور ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنا وقت سب جو ہے دین کے کام میں لگاتے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہے اس کو کہ جہاں ملتے تھے وہیں دین کی بات کرتے تھے. مسجد شرط نہیں لگائی. مسجد شرط نہیں لگائی، لیکن مسجد میں فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے. فائدہ یہ تو اپنی مرضی سے ٹھیک ہے. وہ تو جہاں ملتے تھے آؤ اجلسو. حضور سے آ کے سوال کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ ہم کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن مسجد نہیں لی. وہ جہاں ملتے ہیں آؤ اجلسو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معمول تھا کہ اجلسو، جہاں ملتے تھے وہیں بات کرتے تھے. مسجد بھی ہو سکتی ہے، مسجد کے باہر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ لوگ مسجد سے دور ہیں اس لیے مسجد میں لانے کی فکر کی جائے. یہ صحیح بات ہے، یہ تو ہمارا عمل ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ طریقہ جو ہے صحابہ سے بالکل نہیں وہی ہے. یہ کہیں کہ بھائی صحابہ سے ثبوت ملتا ہے اس لیے ہم لوگ یہ سب کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ دعوت کا کام یہ کہہ سکتے ہو اپنی مرضی سے، چونکہ باہر کا ماحول ایسا نہیں ہے. مسجد کا ماحول زیادہ مناسب ہے، اس لیے مسجد میں بات کرو. یہ تو ہمارا عمل ہوا. لیکن جب صحابہ کا عمل ہم بیان کریں گے مولانا تو جیسا انہوں نے کیا ہے، اب صحابہ جہاں ملتے تھے وہیں دین کی بات کرتے تھے. مسجد ہو، دکان ہو، سڑک ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، اجلسو آؤ بیٹھو تھوڑی سی دین کی بات کر لیں. تو اب یہ کہاں سے ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ
तो मैंने आपसे सुबह बताया कि भाई वो तरीका बदल गया है। तो हमने तो वही कहा कि भाई ठीक है, इसमें कोई ममानियत नहीं, जहाँ भी दीन की बात करना चाहो करो। हम किसी मजलिस में गए, डॉक्टरों के मजलिस में गए, वहाँ देखा माहौल ठीक ठाक है, अब बैठ के दीन की बात कर ले। हम किसी के घर मरीज देखने गए, अब देखा कि यहाँ बात करना चाहिए और बैठ के दीन की बात कर लो। हाँ भी कर लो, अब वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी। अब मस्जिद में अलग चीजें हैं। अब मस्जिद में एक इनफरादी मेहनत है, वो तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे, लेकिन एक इज्तिमाई मेहनत है तो जाहिर है कि वो तो आपको कहीं बैठ के करना पड़ेगा। अरे वो इज्तिमाई मेहनत है, हमने जमा होना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। डॉक्टरों को इकट्ठा कर दिया, बेहतर जगह कोई नहीं, डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया, अभी वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, चलो दीन की बात कर लो, वो मस्जिद थोड़ी आएंगे। वो तो इनफरादी हो गई, लेकिन इज्तिमाई नहीं मौलाना, इज्तिमाई हमने 150 डॉक्टरों को इकट्ठा कर रखा, इंजीनियर को इकट्ठा कर रखा है, ताजिर को इकट्ठा कर रखा है, तो वो लायक नहीं है कि मस्जिद में आने। अभी तो नमाज से दूर है, अब उनको नमाज की तरफ लाना है तो वही बात करना होगा ना, उनके जहाँ इकट्ठा करेंगे हाल में। नहीं अगर मस्जिद में जमा होने ज्यादा, मस्जिद में जमा होने लगा, मस्जिद में नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, कहेंगे मेरा इस्तिंजा पाक नहीं है, मैं कहाँ आऊंगा। हाँ तो फिर वही करना चाहिए। तो वही करना चाहिए। अब ये कैद लगा देना मस्जिद में लाके, मस्जिद से बाहर बात करना खिलाफ सुन्नत, सहाबा के तरीके के खिलाफ, ये बात चल रही है, ये कहाँ से हो गया? नहीं ये गलत जी, ये गलत है। ये चल रही है, बात चल रही है कि बाहर बात नहीं करेंगे, मस्जिद से बाहर बात करना खिलाफ सुन्नत और सहाबा के तरीके के खिलाफ है। तो मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहनत की, इस तरीके की बात चल रही है। ये बात गलत है, कह दीजिए कि ये बात गलत है। तो बात जब गलत है तो मेरे कहने से थोड़ी चलेगा, वो तो आपके कहने से चलेगा ना जी। तो इसको, जो चीजें गलत चल रही है कहीं से भी चले, हमसे इससे मुराद नहीं है। अब वो जो है, अब वो कुछ लोग कह रहे थे कि जो मौलाना पढ़ाता है, पैसा लेता है, उससे पहले जनाकार मर जन्नत में जाएगा। हम कब चुप गए। जो मौलाना पढ़ाते हैं, दीन की तालीम पर उजरत लेते हैं, उनसे पहले जनाकार मर जन्नत में जाएगा। हमारे कुछ साथी हैं जाहिल, वो नहीं जानते हैं, वो एक मौलवी साहब से कह रहे थे, भाई तुम लोग तो जहन्नमी हो गए, पैसा लेते हो। हाँ तो ये सब जियारत की बातें हैं, इसको क्या खातिर लाना, इसकी बात ही ना कीजिए। नहीं तो क्या ऐसा कोई बात, ऐसी बात कुछ लिखी है, चली है, और हवाला देते हैं मौलाना साहब को। हमने कहा यार ऐसा तो कह नहीं सकते हो। नहीं कभी नहीं कहते। लेकिन उन्होंने कहा कि देवबंद का जो मौकफ है, उस मौकफ के अंदर ये लिखा हुआ है, तो मैं मौकफ देखना है मुझको। क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं, मौकफ में ऐसा नहीं लिखा है। नहीं। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। अभी मौलाना सलमान साहब नदवी साहब का बयान हुआ वहाँ अहमदनगर के खोपर गांव में। अच्छा हाँ, उनकी वो तो वीडियो चल रही है कि जो लोग मस्जिदों में अल्लाह रसूल की बात करने से रोकते हैं और भगाते हैं, वो हरामी हैं और शैतान के एजेंट हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे। ऐसा कहा है, ऑडियो है भाई मेरे पास, कहिए तो भेज दूंगा। अरे ऑडियो में तो काट पीट के करते हैं। काट पीट के नहीं है, मुकम्मल है वो, काट पीट वाली नहीं है, मुकम्मल। उन्होंने असर बात बयान किया है 23 मार्च को। नहीं तो जाहिर इस तरह की बात तो नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं, किया है। वहाँ के साथी वहाँ से फोन किया कि भाई ऐसी बात चल रही है, और मुकम्मल उन्होंने ऑडियो भेजा है। हाँ तो हम लोगों ने नहीं सुना, हम लोग तो यही है मुस्तकिल। तो मैं भेज दूं आपको मुकम्मल। एक आई है वीडियो, एक है ऑडियो। वीडियो में 5-7 मिनट का है, ऑडियो में 30 मिनट का है। मुकम्मल बयान उनका है असरबाद वाला। हाँ तो ये अब बात साहब वगैरह जो चल रहा है, सब इसकी क्या हकीकत नहीं? हकीकत नहीं, वहाँ के जो लोगों ने फोन किया वो हकीकत है। कि जो आदमी, उन्होंने कहा कि मस्जिद तुम्हारे बाप की है कि अल्लाह का घर है, क्यों नहीं करने देते? तो जो लोग मस्जिद में अल्लाह रसूल की बात करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों को भगाते हैं, वो इब्लीस के वर्कर हैं और हरामी हैं। कि ये मौलाना सलमान साहब ने कहा है। नहीं तुम रोकना तो नहीं चाहिए भाई, ये तो बात सभी जानते हैं, कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि अच्छी बात है। तो आज तो भगाया जा रहा है, व्हाट्सएप पे देखो, अभी मऊ में मुफ्ती जावेद साहब ने भगाया, आजमगढ़ के निजामाबाद से भगाई गई, बस्ती के नरियाओं के पास से भगाए। क्यों भगाते भाई? तो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं जी। मुफ्ती जावेद साहब ने ये कहा कि अगर 9 बजे तक तुम लोग मऊ को नहीं छोड़ दोगे, तुम्हारी वो हाल की जाएगी जो समझ नहीं सकते हो। तो बेचारी जमात वाले थे, घबरा के घर भागे,
चले गए वहाँ हाजी बशीर साहब के यहाँ, ये कौन सी बात हो रही है? कोई भी आदमी आवे दीन की बात करे, क्यों भगाते भाई? नहीं, ये गलत है, जो अगर भगाया है तो गलत किया। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जो चल रही हैं मौलाना, इसको रोकना है। उम्मत के अंदर वैसे इंतशार है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात और चल रही है, जो कुरान, जो मोबाइल रख के जेब में नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। मुझसे आके कहा कि तुम्हारे पास ये मोबाइल है फोटो वाला, जेब में रख के नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। ये बताओ ये हम क्या करें मौलाना? हमको भाई तुम जाहिर बात, ये सब बात ऐसी होगा। और बताते हैं कि मौलाना साहब ने कहा है इस बात को। नहीं ऐसा उन्होंने, उनका बयान नहीं है, बल्कि ये सुनाया कि उलमाए सू है जो मोबाइल के जवाब होने का फतवा देते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि मोबाइल तुम रख के नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी एक को नमाजें नहीं होगी। और हवाला मौलाना साहब का देते हैं। क्या ऐसा मौलाना ने कोई बात कही है जी? कभी नहीं सुना, ऐसा नहीं सुना है। उम्मत का तकरीबन 90 या 95% लोग जो है मोबाइल जेब में रख के नमाज पढ़ते हैं। जाहिर है। तो अगर इन सबकी नमाजें नहीं होगी जहन्नम में चले जाएंगे। और हवाला देते हैं कि मौलाना साहब ने फरमाया है लिहाजा तुम इस मोबाइल को छोड़ दो। मैंने कहा भाई मीडिया है, दुनिया की सारी मेरे पास जरूरत है, आती रहती है, मैं क्या करूं? वो ये कहते हैं हाँ कि कुरान मजीद को देख के पढ़ने का जो फायदा है वो मोबाइल से नहीं होगा। ये अलग है, वो तो अलग है। देख के फायदे, अब सफर वगैरह में चले जाओ, कुरान मजीद नहीं है तो पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं इसका है। लेकिन जो जेब में रख के नमाज पढ़ते हो, नमाज नहीं होगी। नहीं, ये गलत है। ऐसा कहा कि नहीं कहा है वो मौलाना साहब जी? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कुरान के समझ के पढ़ना वाजिब है। और जो कुरान के बगैर समझ पढ़ के पढ़ता है तर्क वाजिब का गुनाह होता है। मैंने कहा भैया मैं तो जो है अरबी जानता नहीं हूँ, कैसे समझ के पढ़ूंगा मैं? जबकि मौलाना जकरिया साहब फरमाते हैं चाहे समझ के पढ़ो बेसमझ के पढ़ो, दोनों पे सवाब है। तो अब ये कहते हैं कि मौलाना साहब ने कहा है कि तर्क वाजिब का गुनाह मिलेगा। क्या ऐसा कहा है उन्होंने? हरगिज़ नहीं। तो ये बात कहाँ, देवबंद के जो उन्होंने कहा कि देवबंद के जो मौकफ है उस मौकफ के अंदर ये चीज लिखी हुई है, उन्होंने कहा है। नहीं ऐसा नहीं। तो देवबंद वाले मौकफ गलत निकाले क्या जी? तो गलत है बात है। नहीं, देवबंद ने जो मौकफ में शाये किया है अपनी ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, तो क्या मौकफ में उन्होंने गलत निकाला है? अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये कि बहुत सी बातें ऐसी हैं। नहीं तो अब सो मौकफ जो है देवबंद का आप पढ़ लीजिए। ये चीजें जो उजरत लेने वाली और वाजिब वाली, कुरान के पढ़ने वाली, मोबाइल रखने वाली, उन्होंने कहा ये देवबंद के मौकफ भी लिखा है, तहकीक करके उन्होंने लिखा है। ये बात इन्होंने कही है, आप कहते हैं नहीं कही है, तो वो कौन सी बात है? ये बात कहीं हो सकता है, कहीं भी हो है? तो हो सकता है कहीं ये बात कही हो, मतलब एक होता है कहीं कह दिया एक बात, तो फिर बाद में उनको रुजू कर लिया। हमारे जो काम करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमसे ये कहा जा रहा मरकज से जो बात कही जाती है वही मानो, और तहकीक करोगे तो गुमराह हो जाओगे। क्योंकि मरकज से बात कही गई है, मौलाना ने कहा लिहाजा हम इसी बात पर अमल करेंगे। और उन्होंने कुछ लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा जी। तो क्या ये बातें कहीं अगर कही गई है नहीं कही गई हैं कि मसला होता है? ये बात कही गई कि भाई तस्वीर से पढ़ो, देख के तर्जुमा करो, ये हो गया। और एक हो गया कि वाजिब कौन कर देगा? हाँ वाजिब अल्लाह रसूल करेंगे या कोई जो चाहेगा। उन्होंने लिखा है कि जो देख के नहीं समझ के नहीं पढ़ता तर्क वाजिब का गुनाह लेता है। तो हम कुरान भी पढ़ें और गुनाह भी मोल लें जी? तो ये बात अगर उम्मत में चलेगी तो हजरत उम्मत कहाँ जाएगी ये बताओ? हैं? नहीं तो ये बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो मरकज से जैसे कहा जाता है वैसे करो, तहकीक करोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो ये जी ये भी कहना है, ये भी कह रहे भाई हमको तहकीक की जरूरत नहीं है। जो मरकज से कहा जाए, अब पहले तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के जो मलफूज है उसमें लिखा है मेरी बात को मान के अमल करोगे गुमराह हो जाओगे। मेरी बात को कुरान और सुन्नत पर पेश करो, अगर सही हो तो अपने शबाब दीद को मानो वरना छोड़ जाओ।
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مرکز سے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کرو، اگر تحقیق کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ ایک الگ فرقہ بن جائے گا کیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سمجھے نہیں، ان سے کہو پہلے سمجھو جو مرکز کہہ رہا ہے، اس کے بعد عمل کرو۔ وہ جو مرکز کے سمجھنے والے ہیں وہ آ کے بیان کرتے ہیں، جو مرکز میں رہتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ تم نہیں سمجھ پائے مولانا صاحب کی بات کو، تم سمجھے نہیں، جا کے پھر سے سمجھو۔ تو اب یہ لوگ، کچھ لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اب میرے اوپر کہہ رہے ہیں کہ تم موبائل فوٹو والا رکھتے ہو، اینڈرائڈ رکھتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی، سب بیکار ہے۔ یہ چیزیں اگر امت میں مولانا چلے گی تو امت کہاں جائے گی؟ جی ٹھیک ہے، دعا کی درخواست ہے، انشاءاللہ پھر کوئی بات سمجھنا ہوگی تو میں آپ کو فون کروں گا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔